Hi dear students, in the last session we have discussed basic introduction of the HTML, and in this session we will be studying basic HTML tags. That tags are most important for writing the HTML code. So the first basic tag of HTML is HTML tag. Actually, it represents the root of an HTML document, so it acts as container for all other HTML elements. It informs the browser that it is dealing with an HTML document. It is very important to place both of these tags in our documents, as they tell the browser where your page begins and ends. Actually, जब हम लोग HTML कोड को लिखते हैं तो सबसे पहला बेसिक जो HTML टैग होता है वो है HTML। एक्चुअली इस टैग को कंटेनर टैग बोलते हैं, क्योंकि इस टैग को एंड करना नेसेसरी होता है, और यही टैग आपको बताता है कि आप HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर रहे हैं, HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हो। ओके, द नेक्स्ट basic tag of HTML is head tag. Actually, this element is container for all the header element. The head tag must include a title for the document that can include script, styles, meta information and many more. The second line of your HTML document should be head. The content contained in the head section of your document provide information to the browser and search engine, but it is not displayed directly on the web page. एक्चुअली जो हमारा नेक्स्ट बेसिक HTML टैग है वो आपका हेड टैग है। जनरली हेड टैग आपके ब्राउज़र और सर्च इंजन को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, बट ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली आपके वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होती है। और दिस टैग इज ऑल्सो हैविंग ऑन एंड ऑफ टैग। इस टैग में आपके पास ऑन एंड ऑफ दोनों तरीके के टैग होते हैं। इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी टू क्लोज दिस टैग। तो ये नेसेसरी होता है कि आपको हेड टैग को भी क्लोज करना है ना। ओके, द नेक्स्ट basic HTML tag of HTML is title tag. This tag defines the title of the document. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML में, तो जो टाइटल टैग का जो काम होता है जनरली वो आपका वेब पेज को टाइटल देने के पर्पज़ से करते हैं कि हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा। ओके, एक्चुअली इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन ओपनिंग हेड टैग एंड क्लोजिंग हेड टैग। एज वी सी दैट this is open head tag and this is close head tag. Okay, the next most important tag is body tag. This tag defines the document's body. It is used to set the basic page characteristics. It contains all the necessary contents of the HTML documents such as text, hyperlink, images, table, list, etc. The content of our web page is placed in between the opening body and closing body tags. बॉडी टैग जो है जनरली हमारे वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है, जैसे कि मैंने कहा टेक्स्ट हुआ, कोई हाइपरलिंक हुआ, या इमेज हुई, या टेबल हुई, या लिस्ट हुई, तो वेब पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले करनी है वो सारी इंफॉर्मेशन या जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम लोग बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं उसको। ओके, now second thing is attributes of body tag. Actually there are number of attributes of body tag, in which some important or widely used attributes of body tags are the first attribute of body tag is background. Actually this attribute specify a background image for a document. HTML supports various graphics formats such as GIF, .jpg etc. एक्चुअली जो आपका बैकग्राउंड एट्रीब्यूट है इसको हम बॉडी टैग के साथ में यूज करते हैं हमारे वेब पेज के बैकग्राउंड पे किसी भी इमेज को सेट करने के पर्पज से। ओके, वी कैन सी द जनरल सिंटैक्स ऑफ
this attribute as body. All the first we write the body tag, then its attribute background, then the name of image. Okay, the next attribute is text. Actually this attribute specifies the color of the text in a document. इस एट्रीब्यूट का जनरली हम लोग जो टेक्स्ट का कलर जो भी सेट करना चाहते हैं उसके पर्पज से यूज करते हैं। ये भी जनरली आपका बॉडी टैग का एट्रीब्यूट है, इसलिए इसको बॉडी टैग के साथ में यूज करेंगे। इसको जनरली जो लिखने का तरीका होता है इसका जनरल सिंटेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग बॉडी टैग लिखेंगे, उसके बाद टेक्स्ट, देन उस कलर का नेम स्पेसिफाई करेंगे या उसकी कलर कोडिंग का नेम, कलर कोडिंग को स्पेसिफाई करेंगे जिसमें हमें टेक्स्ट का कलर चाहिए। Okay, next attribute of body tag is bg color. This attribute actually defines the background color of a document. जनरली आपका जो ये बीजी कलर एट्रीब्यूट है ये आपके वेब पेज के कलर को डिफाइन करता है आपका कि हमारे वेब पेज का जो कलर हो वो किस तरीके का होना चाहिए। जनरली बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे वेब पेज का कलर होता है वो वाइट होता है। ओके, दिस इज ऑल्सो यूज लाइक एच अदर एट्रीब्यूट्स विल बी यूज्ड। इसका भी यूज उसी तरीके से होगा जैसे कि इससे पहले के एट्रीब्यूट्स का हमने यूज किया है। ओके, सबसे पहले हम लोग बॉडी लिखेंगे, देन बीजी कलर लिखेंगे, उसके बाद उसमें कलर का नेम लिखेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज लिंक। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ एन अनविजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ लिंक एट्रीब्यूट इज ब्लू। एक्चुअली जब भी हमारे जितने भी हमारे लिंक होंगे जिन्हें कि हमने विजिट नहीं किया होगा, जैसे कि हमारे सामने फर्स्ट टाइम जो भी शो होंगे, तो जो हमारे लिंक होंगे, हमारा जो भी टेक्स्ट लिंक होगा उसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लू होता है उसका। तो एक्चुअली जो लिंक टैग का हम लोग यूज करेंगे वो अनविजिटेड लिंक के लिए यूज किया जाएगा। सिमिलरली ए लिंक, एक्चुअली ए लिंक दिस attribute is defined as active link. It means this tag attribute is used for active link. तो इस टैग के एट्रीब्यूट का जो हम यूज करेंगे वो एक्टिव लिंक के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली द नेक्स्ट अदर लिंक एट्रीब्यूट इज वी लिंक। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ अ विजिटेड लिंक इन अ डॉक्यूमेंट। वी लिंक एट्रीब्यूट का जो यूज होगा वो जनरली विजिटेड लिंक के लिए किया जाएगा। इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर होगा वो हमारा पर्पल कलर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग इज टॉप मार्जिन। एक्चुअली वी कैन सेट टॉप मार्जिन ऑफ आवर बॉडी एलिमेंट्स। टॉप मार्जिन के थ्रू हम लोग अपनी बॉडी एलिमेंट्स का जो मार्जिन है उसको सेट कर सकते हैं हम लोग। Then next attribute of body tag is left margin. Similarly, like as a top margin, we can also set left margin of the content of the body tag. Okay, the next most important tag is font tag. Actually this tag specifies the font face, font size and font color of the text. जनरली आपका जो फ़ॉन्ट टैग यूज़ किया जाता है वो आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट कलर या फ़ॉन्ट फेस को सेट करने के पर्पज से यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली फ़ॉन्ट टैग हैविंग नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर यूज्ड विद द फ़ॉन्ट टैग लाइक एज फ़ॉन्ट साइज। दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द साइज ऑफ द टेक्स्ट इनसाइड द फ़ॉन्ट टैग। इस एट्रीब्यूट का जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो टेक्स्ट के साइज को स्पेसिफाई करने के पर्पज से किया जाता है। और जनरली द रेंज ऑफ स्पेसिफाइड वैल्यू गोज फ्रॉम 1 to 7। इसकी जो वैल्यू होती है, जो भी हम लोग फॉन्ट की साइज़ की जो वैल्यू देंगे वो 1 से लेकर 7 के बीच में होगी। ओके, वी कैन ऑल्सो सेट द रिलेटिव साइज ऑफ द करेंट साइज यूजिंग प्लस और माइनस साइन। The next attribute of font tag is face. Actually this attribute specifies the font name or typeface of the text inside a font tag.
इस टैग के एट्रीब्यूट का जो हम यूज करेंगे वो हम अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट के टाइप या उसके फेस को चेंज करने के पर्पज से यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई इन्फॉर्मेशन हमें टाइम्स न्यू रोमन में चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली में चाहिए या इटैलिक चाहिए, तो इस एट्रीब्यूट का हम लोग फ़ॉन्ट टैग के साथ में यूज करेंगे। हम लोग फ़ॉन्ट, इसके जो जनरल सिंटैक्स होगा, सबसे पहले आप लोग एंगल ब्रैकेट में फ़ॉन्ट लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देके फेस, उसके बाद उस फ़ॉन्ट फैमिली का नाम, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन है या एटसेट्रा, कोई भी आपका फ़ॉन्ट फैमिली का नेम हो सकता है। Okay, the next attribute of font tag is color. This attribute specifies the color of the text inside a font tag. इस एट्रीब्यूट का जो हम लोग यूज करेंगे वो हम लोग टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के पर्पज से यूज करेंगे। जनरली हम लोग when we write the syntax of this tag with this attribute, then we can use by default RGB red, green, blue or directly, but when we want to change the color of the text other than these colors, then we write this some coding of the colors. अगर हम लोग जैसे कि अगर सपोज दैट हम लोग फ़ॉन्ट कलर के साथ में डायरेक्टली अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अपने कलर्स के नेम लिखते हैं। जैसे तो उसमें आप लोग 3 तरीके के कलर्स को लिख सकते हो, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसके अलावा अगर कोई भी अदर कलर चाहिए तो उसके लिए आपके पास एक कलर कोडिंग डिफ़ाइन की गई है और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। Okay, the next tag is base font tag. Actually this tag specifies a default font color, font size or font family for all the text in a document that follows it, which is only supported by इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र। जनरली जो बेस फ़ॉन्ट का हम लोग यूज करते हैं, जो बेस फ़ॉन्ट टैग है, ये जिस तरीके से हम लोग फ़ॉन्ट टैग के साथ में साइज़, फ़ॉन्ट की स्टाइल या फेस या उसका कलर चेंज किया टेक्स्ट का, उसी तरीके से इसका भी यूज करेंगे बेस फ़ॉन्ट का। लेकिन जनरली जो इसका बेस फ़ॉन्ट का टैग यूज किया जाता है वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है। जैसे हम बेस फ़ॉन्ट का यूज़ करेंगे तो बेस फ़ॉन्ट का यूज़ करने का मतलब ये है कि उसके पूरे डॉक्यूमेंट पे इसका असर होगा। जिस तरह के कलर आप चेंज करना चाहते हो, साइज़ चेंज करना चाहते हो या उसका टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, तो होल डॉक्यूमेंट का कलर, साइज़ या फ़ॉन्ट फैमिली चेंजेज होंगी उसके साथ में। Okay. The next tag is center tag. This tag is used to centralize a segment of text to be displayed on browser window. जनरली जो सेंटर टैग का हम लोग यूज करेंगे तो किसी भी टेक्स्ट को सेंटर पर शो करने के लिए अपने वेब पेज पे तो सेंटर टैग का यूज करेंगे। तो जनरली जो सेंटर टैग होगा, अगर सपोज दैट मैंने कहा कि वी राइट अ मैसेज लाइक एज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हम एक मैसेज लिखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने कहा कि अपने वेब पेज पे एक इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन द सेंटर ऑफ द वेब पेज के सेंटर पे। तो देन वी राइट दिस इंफॉर्मेशन सच एज ऑल द फर्स्ट वी राइट दिस सेंटर टैग, देन आवर टेक्स्ट लाइक एज ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, देन क्लोजिंग टैग ऑफ द सेंटर टैग। ओके, we can also see the use of this tag in the given program. In this program we have a message, this text will be center aligned. The output of this program will be displayed on the web browser in the center of the web page. The next tag is command tag. Actually this tag is used to insert command in the source code of the web page. Commands are not displayed in the browser window. जनरली कमेंट टैग का जो हम लोग यूज करते हैं तो जनरली कमेंट देने के पर्पज़ से यूज किया जाता है। तो कमेंट जो है आपका वो वेब ब्राउज़र की विंडो पर डिस्प्ले नहीं होता है आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, in the next session we will discuss more tags
that are used to create web page and other information like as insert an image on the web page, create a list, ordered and unordered, and create a table and creation of hyperlink. Okay, in the next session. Okay, goodbye.